Hello students, welcome to RK Knowledge channel. Here is Prem sir from RK classes taking 12th standard commerce subject bookkeeping and accountancy. Chapter dissolution of partnership firm. It's your chapter number 6. We are today handling question number 5. It's on page number 222. Students, for solving dissolution question, we have to make realization account, then partners capital account, and here in balance sheet they have given cash at bank, so we will make cash at bank account. You can write just bank account also, correct. In realization the columns are particular, rupees, and for partners capital account the columns are particular and the partner's name. Here the partners are sun, moon and star. They are sharing profit in the ratio 5:3:2. It's given in the question 5:3:2. 5, 3 and 2 will totally become 10. तो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसे वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर फर्स्ट पार्टनर, मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर सेकेंड पार्टनर, मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर थर्ड पार्टनर, दैट वे. ओके. कैश एट बैंक अकाउंट में भी हमने पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम ले लिया है. अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. बैलेंस शीट एसेट साइड में स्टूडेंट्स हमें एसेट्स दिया हुआ है, वो हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. द एसेट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर. फर्नीचर हमने लिया 20,000. वी आर शोइंग फर्नीचर अमाउंट 20,000. Next assets is goodwill. Next asset is goodwill. Students, for goodwill, if they are saying the realization amount for goodwill, then we will realize goodwill. If it is not said anything in the question, then we will leave out, means no effect for realization of goodwill. Next special assets is given joint life policy. We have joint life policy of 30,000, means 30,000 का हमने joint life policy लिया हुआ है. ये हमें फ्यूचर में 30,000 मिलने वाला है, इसे भी हम रियलाइज करेंगे. And sundry debtors amount is 60,000. 60,000 they said. Next, stock they said 22,000. Then cash at bank, it's your bank balance. The bank balance amount is 40,000. Cash at bank, the balance will be written as to balance brought down 40,000. Then students,
कैपिटल अकाउंट में आपको सावधानी रखनी होगी। जिसका कैपिटल बैलेंस एसेट्स में दिया है उसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जिसका लायबिलिटी में दिया है उसका क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वी आर राइटिंग बैलेंस ऑफ मून डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 for moon, and the others are having credit balance. So buy balance brought down 35,000 for sun and 85,000 for star. Next is a reserve fund. Reserve fund, students, 15,000 they have given. We will share it. Divide by 10, you will get 1500. 1500 multiply by 5 will be 7,500. Then 1500 multiply by 3 will be 4,500. Then 1500 multiply by 2 will be 3,000. This way we shared 15,000 in the ratio 5:3:2. Next is your joint life policy fund. Its liability, in liability list we will write realization credit side, buy sundry liability, joint life policy fund. It is 30,000. Next is creditors. Sundry creditors, they said 26,000. So we are recording 26,000. And outstanding rent is your last liability. Outstanding rent, they said 4,000. So we are here recording 4,000. Okay. Now students, we are starting adjustment. Furniture and stock were taken over by Sun. So Sun का नेम लिखेंगे हम. Assets पहले रिकॉर्ड होता है डेबिट में, लेकिन रियलाइजेशन होने का टाइम उल्टे साइड में, मींस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. बाय सन्स कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर सन ने लिया है, द एग्रीड अमाउंट इज 35,000. फर्नीचर पहले 20 का था लेकिन वो 35,000 देगा. एंड स्टॉक, ही एग्रीड टू पे फॉर स्टॉक 28,000. पहले स्टॉक 22,000 का था लेकिन अभी वो 28,000 पर एग्री हुआ, तो हमें ट्रांजैक्शन अमाउंट, एग्रीड अमाउंट ही लिखना है. सेकेंड इफेक्ट दिखाने के लिए प्लस कीजिए. सो प्लस करने पर ये आ रहा है 63,000. 63,000 यहाँ क्रेडिट में है, हम इसे डेबिट में शिफ्ट करेंगे. सन के डेबिट में लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, नाम क्रॉस लिखा जाएगा. रियलाइजेशन में बाय सन कैपिटल अकाउंट और सन कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट. द अमाउंट विल बी इन सन्स कॉलम. सन के कॉलम में लिखेंगे एसेट्स टेकन and the amount will be the single total amount 63,000. Correct students? Now second one, joint life policy was surrendered. Surrender मतलब उसका total amount हमने रिटर्न ले लिया. So assets में चेक कीजिए, joint life policy 30,000 की थी, surrender means total amount हमें रिटर्न मिल गया, तो joint life पॉलिसी का अमाउंट हमें मिला 30,000, 30,000. एंड डेटर्स वेर रियलाइज्ड इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. डेटर्स को 20% डिस्काउंट अलाउ किया हमने. 20%, 60,000 है डेटर्स, उसका 20% होगा 12,000. सो 60,000 माइनस 12,000 आप करेंगे तो 48,000 आएगा. सो वी आर रिकॉर्डिंग 48,000. Now, next adjustment is sundry creditors were taken over by Moon at 24,000. So Moon, पहले इसका फाइनल कर लिया जाए. बैंक में इनके पैसे जो हमें मिले हैं वो जमा कर देंगे हम. सो कैश एट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा. टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,000. करेक्ट. अब मून जो है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए स्वीकार कर रहा है.
सो सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून 24,000, तो मून कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिटर्स टेकन ओवर एंड द एग्रीड अमाउंट इज 24,000. क्रेडिटर्स अमाउंट 26,000 था, उसे एग्रीड अमाउंट 24,000 पर रिकॉर्ड किया गया. सेकेंड इफेक्ट इसका दिखाया जाए, मून ने एग्री किया है, सो मून के कॉलम में दिखाया जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000, यहां बाय होना चाहिए, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 फॉर क्रेडिटर्स टेकन ओवर. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000. एक्सपेंसेस है इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा जाएगा. किसी भी पार्टनर का नाम नहीं है तो ये बैंक अकाउंट से हम पे करेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट इज 2,000. इसके बाद स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे अगर कोई भी लायबिलिटी पे करनी बाकी है तो हम अपने मन से ही पे कर देंगे. सो यहां पर आप नोट चेक कीजिए. नोट हमने क्रेडिटर्स देख लिया कि मून ने पेमेंट कर दिया. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30,000 लाइबिलिटी में है. आफ्टर सरेंडर नो नीड टू पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड जो है हम सरेंडर के बाद पे नहीं करेंगे. और आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी पे बाय डिफॉल्ट. आउटस्टैंडिंग रेंट जो है लायबिलिटी में उसे हमें डिफॉल्ट में पे करना पड़ेगा. मीन्स हम अपने मन से उसका पेमेंट कर देंगे. सो आउटस्टैंडिंग रेंट वी आर पेइंग द रिकॉर्डेड द बुक अमाउंट 4,000. बुक वैल्यू इज 4,000, हम 4,000 उसे अपने मन से ही पे करेंगे. सेकेंड इफेक्ट के लिए टोटल किया जाए, द टोटल इज 6,000. बैंक से पे हो रहा है इसलिए बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. बैंक के क्रेडिट साइड में क्रॉस नेम आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट. द टोटल फिगर वी विल राइट हियर, द टोटल फिगर इज 6,000. सो वी रिकॉर्डेड हियर 6,000. स्टूडेंट्स चेक कीजिए, लायबिलिटीज तो पूरी हमने पे कर दी है. एसेट्स में कोई एसेट्स बाकी है क्या? तो फर्नीचर सन ने ले लिया. जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैंक से पैसे प्राप्त हो गए. डेटर्स बैंक से प्राप्त हो गए. स्टॉक सन ने ले लिया. तो बचता है सिर्फ गुडविल. तो गुडविल को डिफॉल्ट में हम रिकॉर्ड नहीं करते. अगर गुडविल का कुछ अमाउंट दिया है तो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो डिफॉल्ट में गुडविल भूल जाएंगे. करेक्ट, गुडविल का रियलाइजेशन नहीं किया जाएगा. बाय डिफॉल्ट वी विल नॉट रियलाइज गुडविल. सन्ड्री एसेट्स का टोटल हो गया 1,45,000. सन्ड्री लायबिलिटीज का टोटल हो गया 60. क्रेडिट साइड में हमने प्लस किया 2,01,000. यही कॉपी करेंगे डेबिट साइड में 2,01,000. स्टूडेंट्स 2,01,000 में से ऊपर का पूरा अमाउंट लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा. सो माइनस करने के बाद प्रॉफिट आया 26,000. अब ये 26,000 हम पार्टनर्स के कैपिटल साइड में शिफ्ट करेंगे. सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे लिए प्रॉफिट है. सो यहां पर लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड. तीनों पार्टनर को शेयर करेंगे हम, सन, मून और स्टार को 5:3:2 में 5:3:2 में उन्हें शेयर किया जाएगा. स्टूडेंट्स 5:3:2 में शेयर करने के लिए द टोटल इज 10 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 2600. 26,000 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 2600. अब 2600 को आप मल्टीप्लाई कीजिए. 2600 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए. आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 आएगा. 13,000 सन के लिए. फिर 2600 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7,800 आएगा मून के लिए. फिर 2600 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5,200 मीन्स 5,200 आएगा स्टार के लिए. करेक्ट स्टूडेंट्स. अब ये तीनों अमाउंट हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में शिफ्ट करेंगे.
सो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा गया टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रॉफिट। नाउ द अमाउंट्स आर फॉर सन इट इज 13,000, वी आर रिकॉर्डिंग फॉर सन इन सन कॉलम 13,000, and for moon in the moon column the amount is 7,800, and last स्टार के लिए जो प्रॉफिट है 5,200 है, ये स्टार के ही कॉलम में लिखना है 5,200। नाउ स्टूडेंट्स हमें देखना होगा किस साइड अमाउंट बड़ा है, तो सन के लिए डेबिट साइड बड़ा है, तो पहले डेबिट प्लस कीजिए। डेबिट हो रहा है 63,000, यही 63,000 हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड 63,000। इस 63,000 में से ऊपर का सारा अमाउंट माइनस कीजिए, ऊपर के सारे अमाउंट आप माइनस करने के बाद पाएंगे 7,500। ये बैंक से सेटल किया जाएगा, सो यहां पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ये बाद में बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। अब मून का देखा जाए, मून का क्रेडिट साइड में ज्यादा है, मून का क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे 36,300, वही फिर डेबिट साइड में शिफ्ट कीजिए 36,300, ऊपर का 10,000 उसमें से माइनस कीजिए, ऊपर का 10,000 माइनस करने के बाद बचता है 26,300, ये हम बैंक में ट्रांसफर करने वाले हैं, सो लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट स्टार का डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, अगेन क्रेडिट ही ज्यादा है, तो क्रेडिट हम प्लस करेंगे 93,200, वही अमाउंट डेबिट में शिफ्ट करेंगे 93,200। अब इसमें से ऊपर का सारा अमाउंट लेस कीजिए, ऊपर कुछ अमाउंट है ही नहीं, सो बैलेंस पूरा बचेगा 93,200, ये भी हमने बैंक के सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट में शिफ्ट करेंगे, क्रेडिट वाला डेबिट में, सो पहले क्रेडिट वाला जो है वो शिफ्ट किया जाए। क्रेडिट में 7,500 किसके लिए है, सन के लिए, तो हम लिखेंगे टू सन्स कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट इज 7,500। सिमिलरली डेबिट वाले क्रेडिट में लाइए, सो लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स के नेम, बाय मून्स कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट इज 26,300, बाय मून्स कैपिटल अकाउंट हमने लिखा 26,300, एंड द लास्ट वन बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट, बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट। स्टार का जो अमाउंट है वो 93,200, डेबिट से हम क्रेडिट साइड में शिफ्ट करेंगे 93,200। फाइनली डेबिट और क्रेडिट प्लस करके देखिए, दोनों सेम आना चाहिए, सो हमने पहले डेबिट साइड प्लस किया, इट्स गिविंग 1,25,500। क्रेडिट साइड चेक कीजिए, यहां पर भी सेम टोटल आ रहा है 1,25,500। दिस वे वी कंप्लीटेड this question number 5. It was very nice question. So share this video to your friends, subscribe the channel, and thanks for watching the video.